another episode of Facebook Live Career Talk organized by ICM International for its students and members. Firstly, I apologize for being a little bit late. We are actually facing some technical issue with regards to connecting with our today's speaker, but inshallah, he's trying to connect at earliest. We do have with us Mr. Salman Noor Sheikh. He's the head of HR and organization development at Kutiana Maiman Hospital, and the topic which we'll be talking is about the team building skills. I'm sure you'll have a very fruitful session. He's trying to connect, inshallah. Once we connect, we'll have a discussion further. Meantime, I'll just walk through the job vacancy information announced during this week. So I just go through the weekly vacancies announced. First vacancy we have is with Saeed Ghani, 1888. They are looking to hire for accounts receivable. Chartered management accountant is eligible, and 8th February is the deadline, and Karachi is the location. For those who have logged in for the very first time, email ID for Karachi is crc.khi@icmap.com.pk. The next we have is with Thal Engineering. They are looking to hire for deputy manager finance and deputy manager costing. Uh, Karachi is the location, and the date is little bit. It's for 10th February. Next, we have with Changan Motors. They are looking to hire for AM payable, and it's again a Karachi-based position. 9th February is the deadline. The next position we have is with United Agro. They are looking to hire for AM Finance and Chartered Management Accountant is eligible, and 12th February is the deadline. Uh, the next position we have is with Surti Enterprises. They are looking to hire for Deputy Manager Finance. Associate and fellow member both are eligible, and 9th February is the deadline. BDO Ibrahim, they are looking to hire for Manager Internal Audit and Assistant Manager Audit, and February 9th is the deadline. The next position is with a Pakistan Single Window. They are looking to hire for finance executive, and Islamabad is the location, and 9th February is the deadline. They also have another position for internal auditor, and it's open for all, for members as well as for the party qualifier, which is affiliate financial accountant. Both are eligible for this position. FF Steel is looking to hire for GM taxation. Fellow member and associate member both are eligible, and 9th February is the deadline. HBL Microfinance Bank is looking to hire for financial manager. Chartered management accountant is eligible, and 12th February is the deadline. Tariq Kazi Management Consulting is looking to hire for an accountant position. Affiliate financial accounting is eligible, and 8th February is the deadline. The Monal Group is looking to hire for treasury executive. It's again Islamabad-based position, and affiliate financial accountant is eligible. 7th February is the deadline. High Growth uh, is looking to hire for accounts executive, and 9th February is the deadline. Right. With this note, we are done with this week opportunity. I take the honor and privilege to introduce today's learned speaker. We have with us Mr. Salman. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम शम्स आवाज़ आपको यो जी जी बिल्कुल मुझे आपकी आवाज़ आ रही है. लिटिल बिट डिले बट I think I can hear you well. So I'll just take a minute to introduce Mr. Salman Noor Sheikh is the head of human resource and organization development at Kutiana Maiman Hospital. He's a thorough professional with diverse experience. During his past assignment, he served at Chinyot General Hospital uh, as the human resource manager.
Before that, he worked with Saudi General Hospital at multiple positions. So he has an in-depth expertise in the field of human resource and organization development. The topic which he selected for today's discussion is about team building skills. I think it's a very most important because to take the team along is very important factor. So we again say thank you to Salman sir for sparing his time and sharing his thoughts. Meantime, I also welcome all the participants, those who are listening to us today. So you can drop your message, and inshallah, we'll try to connect your message. We'll just give a message to our learned speaker. Do ask as many questions as possible, and that's the core purpose. So you can gain a lot of from the discussion part. So I hand over session to Salman, and over to you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया शम्स, आपने मुझे इनवाइट किया और अपने इस आईसीएमए के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे को अपने इस टॉपिक जो मैंने आज सेलेक्ट किया है, टीम बिल्डिंग स्किल्स, उस पे मुझे अपने तजर्बे की रोशनी में कुछ शेयर करने का मौका दिया। बेसिकली जब से मैं सऊदी अरब से आया हूँ, मैंने वहाँ सऊदीया में 16 साल काम किया है सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में। तो मेरी लाइफ का कैरियर का फर्स्ट एक्सपीरियंस था वहाँ पे। फिर मेरी जॉब खत्म हो गई, मैं पाकिस्तान आ गया। तो पाकिस्तान में अभी पिछले 4 सालों से मैं यहाँ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। तो बड़ा एक अजीब सा डिफरेंस मेरे को नजर आया है इंटरनेशनल एचआर में और पाकिस्तान के एचआर के अंदर। तो मैं बहुत सिनेरियो सामने रखूंगा और बहुत नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों एस्पेक्ट के हवाले से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। वहाँ के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा और यहाँ के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा। तो मैं यहाँ एक बड़ी अजीब सी चीज मैंने देखी है, चूंकि एचआर फ्रेटर्निटी के हम लोग हैं, काफी सारे एचआर के जूनियर लेवल के लोग एएम डीएम मुझे राब्ता करते हैं और मुझे कहते हैं कि सलमान सर, हम जॉब स्विच करना चाह रहे हैं। हालांकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब कर रहे हैं। उसके बावजूद भी वो यही सवाल करते हैं, सलमान सर हम जॉब स्विच करना चाह रहे हैं और आप हमारे लिए प्लीज देखिएगा, अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज जो है इस बात से करना चाहता हूँ कि ऑलरेडी एक बंदा जब एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा है, अच्छी सैलरी ले रहा है, अच्छा पैकेज ले रहा है, उसके बावजूद उसके दिल में ये बात क्यों आ रही है कि उसको जॉब स्विच करनी चाहिए। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, मैक्सिमम जब मैं रीजन पूछता हूँ तो बहुत ज्यादातर 80% तो लोगों की जो सोच होती है वो ये होती है कि मैं जॉब स्विच कर रहा हूँ एनवायरनमेंट की वजह से, एचओडी की वजह से। बहुत 10% लोग होते हैं वो, उनकी जो होती है वो कहते हैं हम सैलरी की वजह से। 10% लोग जो होते हैं वो डिस्टेंस की वजह से। लेकिन 80% लोग जो है वो कहते हैं कि हम एचओडी की वजह से या सुपरवाइजर की वजह से या मैनेजमेंट की वजह से जो है हम लोग अपनी जॉब स्विच करना चाह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं कमजोरी जो है इसका मतलब लीडरशिप के अंदर है या एचओडी के अंदर है कि वो बंदा क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इतना सब कुछ बेनिफिट होने के बावजूद, इतनी अच्छी सैलरी होने के बावजूद वो क्यों वहां से स्विच करना चाह रहा है, ऐसी क्या उसके साथ वहां मामलात हो रहे हैं। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारे यहाँ ज्यादातर जो एचओडीज होते हैं, हमारे यहाँ जो ज्यादातर जो मैनेजमेंट होती है, उनमें जो जो लेकनेस होती है वो लीडरशिप की होती है। और इसी वजह से मैंने आज का टॉपिक रखा है टीम बिल्डिंग स्किल्स के। हमारे यहाँ एक तो फेवरेटिज्म, बायसनेस, दूसरा के एक बंदा आप आपकी टीम आपको फॉलो कब करती है, सवाल ये है आपकी टीम आपको फॉलो कब करती है, जब वो अपने जहन में आपको अपना मेंटोर मानती है, जब वो दिल से आपको एक्सेप्ट कर लेती है और दिल से आपकी वो रिस्पेक्ट करती है। दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि अगर एचओडीज हो गए या मैनेजमेंट हो गई या लाइन मैनेजर्स हो गए या सुपरवाइजर हो गए, अगर टीम को, अगर उनके अंदर ये क्वालिटी है फादर फिगर क्वालिटी, कि जिस तरह घर के अंदर एक बाप है, उसके 4-5 बच्चे हैं और उन 4-5 बच्चों के जहन मुख्तलिफ हैं, उनके मिजाज मुख्तलिफ हैं, उनके घर में रहने का तरीकेकार मुख्तलिफ है, लेकिन बाप अपने सारे बच्चों को बराबरी की सतह पर देखता है
और बराबरी से उनके मिजाज को समझता है, उनके मिजाज के मुताबिक उनको लेके चलता है। तो एक लीडर को भी इसी मेंटेलिटी के तहत, इस माइंडसेट के साथ अपनी टीम को लेके चलना चाहिए। अगर लीडर हमारे ऐसे हो जाए ना, फादर फिगर क्वालिटी वाले, तो मैं कहता हूँ ये मसला ही हल हो जाएगा। एक तो ये चीज। दूसरा, कुछ चीजें हैं, 5 हैं, वो मैं पॉइंट्स जो है अभी डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर हम एज अ लीडर या हम एज अ एचओडी अगर इन 5-6 चीजों का ख्याल रखें, तो आई होप इंशाल्लाह कि हमारे अंडर में जो टीम काम कर रही है वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगी, और दे विल स्टे अलोंग इन द डिपार्टमेंट। सबसे पहले ये कुछ 5 चीजें हैं, मैं अभी अपनी गुफ्तगू में बयान करूंगा एक एक करके, फिर उसमें तफसीली गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहली चीज है एक्नॉलेजमेंट। सबसे पहली चीज है एक्नॉलेजमेंट कि आपकी टीम की अगर प्रोग्रेस दिखा रही है, तो आपने उसकी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज एक्नॉलेज करना है, उसको ये रियलाइज करवाना है कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप उसकी इस उसके अंदर की जो स्किल्स हैं उसको आप एक्नॉलेज करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसके अंदर की काबिलियत को एक्सेप्ट करें। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि एचओडी लेवल के लोग जो है अपने सब ऑर्डिनेटर जो है उसके साथ मुकाबलेबाजी शुरू कर देते हैं। यार मैं एग्जांपल देता हूँ, यार तुमने एमबीए नहीं किया हुआ, यार तुम्हें मार्केट में कैसे जो है मैनेजर की जॉब मिल जाएगी। बजाय इसके कि इस तरह की कम्युनिकेशन उसके साथ करें, उसको आप इनकरेज करें कि देखें आपके लिए एमबीए बहुत जरूरी है, ठीक है आप यहाँ तक आ गए, लेकिन आप एमबीए करें तो इंशाल्लाह आगे जाके आपके लिए इससे और अच्छी अपॉर्चुनिटी निकलेंगी। देखें, कम्युनिकेशन की बात आ गई कि बात ऐसे करो, बात वैसे करो, तो बात ये सारी एक्नॉलेजमेंट की कि आप सामने वाले बंदे की काबिलियत को एक्सेप्ट करें और उसको किसी किस्म का डिसग्रेस ना करें। जब हम बंदे को डिसग्रेस करने लग जाते हैं, वो ऑटोमेटिक अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है। जब अपनी टीम के किसी भी बंदे को अगर वो मिस्टेक करेगा, अगर वो आप उसको दूसरे एचओडीज के सामने उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दोगे, एमडी के सामने उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दोगे, उसके दिल में ऑटोमेटिकली ये बात आ जाएगी, वो बोलेगा यार आई थिंक मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, आई हैव टू मूव। यही सूरत हाल होती है जब वो कहता है कि मैं मुझे यहाँ से स्विच करना चाहिए, मेरी यहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो सबसे मेन चीज ये है कि आप अपने टीम मेंबर्स की जो है रिस्पेक्ट करें, उसके अंदर जो उनके अंदर की जो काबिलियत है उसको एक्सेप्ट करें। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमारे सऊदी अरब का मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे एचओडी सऊदीया में होते थे, मोहम्मद रिजवान पीरजादा। आप यकीन मानिए मेरे मेंटोर थे वो। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा उनके साथ। मुझे मुझे वो कोई भी काम देते थे ना, वो मुझे पहले बुला के कहते थे चीता, वो मुझे चीता कहते थे। तो मैं बड़ा मुकद्दर था, सर आप चीता कहते हैं? कहते यार मुझे पता है कि मैं तुम्हें ये काम दूंगा और तुम थक करके जो है ना उसको करके मुझे लाके दे दोगे। तो ये एक होती है एचओडी के अंदर, एक मैनेजर के अंदर ये एक लीडरशिप कि आपने टीम से आपको टीम को मोटिवेट कैसे करना है, आपने टीम से काम कैसे लेना है। तो ये आपके अपने अंदर ये स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत है कि ये चीज। दूसरी चीज एप्रिसिएशन। एक तो एक्नॉलेजमेंट, दूसरी चीज एप्रिसिएशन। हमारे यहाँ एप्रिसिएशन बहुत कम है। बाहर तो बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं एप्रिसिएशन से हवाले से, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है हर महीने, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर होता है। हमारे यहाँ मैंने पाकिस्तान में तो बहुत मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने लिंक्डइन में देखा है कि वो लोग हर महीने एप्रिसिएशन के प्रोग्राम्स करा रहे होते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर वगैरह। लेकिन जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहां मैंने ये माहौल बहुत ही कम देखा है, और स्पेशली सेठिया कल्चर के अंदर होता ही क्या है कि आपने जब तक अपनी टीम को एप्रिशिएट नहीं करोगे उसकी प्रोग्रेस के मामले के अंदर, उसकी हौसला अफजाई नहीं होगी। हमारे यहाँ होता है क्या है कि हम लोग काम तो टीम से करवाते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट हम अपने खाते में लेके और आगे पेश कर देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला डिमोटिवेट हो जाता है। देखिए ये चीजें हैं जो बंदा जहन बनाता है, यार अब मुझे मूव करना चाहिए। ये चीजें टीम बिल्डिंग स्किल्स, ये चीजें हैं जो आज का टॉपिक मैंने सर्च किया है कि आपने अपनी टीम को अप्रिशिएट करना है। आपने उसको ये रियलाइज करवाना है कि आपने ये काम किया है, तो आप शाबाशी के और तरक्की के हकदार हो। आपने उसका सबसे पहले तो थैंक यू अदा करना है, उसको अप्रिशिएट करना है। आपकी मैनेजमेंट अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकती तो एटलीस्ट आप तो उसको अप्रिशिएट करो, कोई गिफ्ट दे दो अपनी तरफ से। मेरे छोटी थे सऊदीया में, मैं भी जिनका जिक्र कर रहा था, बाजुकात वो कभी जो उनको एतराफ के तौर पे अगर ये चीज रियलाइज मुझे करवानी होती थी, वो बाजुकात मेरे को एक टाई गिफ्ट के तौर पे दे दिया करते थे।
सलमान ये टाई मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। कभी कोई सूट दिला दिया उन्होंने मेरे को, सलमान ये सूट मैं तुम्हारे लिए। कभी अपने साथ खाने पे ले गए, सलमान आज चलो चलो वहाँ खाना खाते चल गए। तो इस तरह का एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट अगर आप देंगे अपनी टीम को, तो ऑब्वियसली वो कैसे फिर आप तस्वुर करेगी कि यार नहीं हम ऐसे एचओडी को छोड़ के जाएं या ऐसे डिपार्टमेंट को छोड़ के जाएं। तो ये चीज है, आपने अपनी टीम को अप्रिशिएट लाजमी करना है, उसके लिए आपको जो करना है करे, क्योंकि आपकी टीम है जो आपके डिपार्टमेंट को लेकर चल रही है। दूसरी चीज एप्रिशिएट, तीसरी चीज है ट्रस्ट। तीसरा पॉइंट है मेरा ट्रस्ट। हम लोग टीम पे जो है ना ट्रस्ट डेवलप नहीं करते। जो हमारा जो टीम के साथ जो रिलेशन है ट्रस्ट का, वो डेवलप नहीं हो पाता कहीं ना कहीं। उसकी वजह ये है कि हमारे और टीम के दरमियान कभी ना कभी किसी ना किसी मामले में कोई गैप रह जाता है, या कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, या किसी मामले में, या हम सही तरीके से टीम से बिठा के उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है हम सुन नहीं पाते। वो क्या सोचता है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसके मन में क्या बात है, हम वो सोच ही नहीं, समझ भी नहीं पाते। हमारे और उसके दरमियान एक ट्रस्ट का रिलेशन डेवलप ही नहीं हो पाता। तो अगर हम अपनी टीम के साथ ये एतमाद का रिश्ता कायम कर लें और उस एतमाद की बुनियाद पे हम अपनी टीम को लेके चलें, आई होप, देखिए आपका टीम मेंबर को अगर ये रियलाइज हो जाए ना कि मेरा एचओडी मेरे पे एतमाद करता है, आप यकीन माने ऑटोमेटिकली उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और जब उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो आपकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करेगा। बोलेगा नहीं यार मेरा एचओडी मेरे पे ट्रस्ट करता है, तो मैं देखूं उसको किस चीज की जरूरत है, वो क्या मांग रहे हैं, उन्होंने कौन सी रिपोर्ट मेरे को कही थी, उन्होंने कौन सा काम मेरे को दिया था। उसके दिल में ऑटोमेटिकली मोहब्बत पैदा हो जाएगी आपके ट्रस्ट करने की वजह से। तो मेरा तीसरा पॉइंट था ट्रस्ट। अब आ जाते हैं, मेरा चौथा पॉइंट है केयर। मैं आपको बताऊं अपनी बात कि मैं सऊदी अरब में मेरा डिपार्टमेंट में मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जिसकी वजह से मुझे इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ा। मेरे मैनेजर की छुट्टी हो गई थी और वो घर चले गए थे, लेकिन किसी तरीके से इमरजेंसी के जो डॉक्टर ने उनको फोन करके बताया कि सलमान एडमिट हो गया है। और वो, आप यकीन माने, वो अपने घर से आए इमरजेंसी में, जब तक वो मेरे को तबीयत मेरी सही नहीं हुई वो मेरे पास खड़े रहे। प्लस मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को वो वहां से लेकर आए अपनी गाड़ी में, और जब तक मैं घर नहीं गया वो वहीं खड़े रहे। ये होती है केयर, कि हम अपने एम्प्लॉय को जब तक हम उसकी केयर नहीं करेंगे, उसके पर्सनल मामलात में, उसके ऑफिशियल मामलात में, उसको हम जब तक हम रियलाइज नहीं करवाएंगे, मेरा बेटा, मेरा भाई, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू टेंशन क्यों ले रहा है, तेरे को टेंशन किस बात की, मैं हूं ना। आप यकीन माने जब तक हम इस तरह का एक रिलेशन कायम नहीं करेंगे ना, तो वो बंदा फिर आपके लिए फिर वो जानिसारी कैसे बनेगा। तो जब तक आप टीम को जब इस तरह का एक एनवायरनमेंट दे देते हैं, जब इस तरह का एक रिलेशन कायम कर देते हैं, तो वो बंदा भी फिर आपके लिए फिर अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है। कहता है नहीं यार, जब अगला बंदा इतना कुछ कर रहा है हमारे साथ, इतनी भलाई कर रहा है, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है रिप्लाई के तौर पे हम डिपार्टमेंट का उस लेवल पे ख्याल रखें, उसके डिपार्टमेंट के हर फंक्शन का, हर चीज का अपन उतना ख्याल रखें। तीसरी आखिरी पॉइंट, जो फिफ्थ, जो मैं अभी बयान करना चाहूंगा, वो है अनकंडीशनल लव। पांचवा पॉइंट, अनकंडीशनल लव। आप अपनी टीम को इसी तरीके से मोहब्बत दें, इखलास के साथ, जैसे आप अपने घर में बच्चों को मोहब्बत देते हैं। उनकी गलतियों को दरगुजर करें, उन्हें बिठाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें कोचिंग दें। सबसे बेहतरीन लीडर वो होता है जो अच्छा कोचिंग होता है, जो अच्छी तरबियत करता है अपनी टीम की। उन्हें गिफ्ट दें, उन्हें अप्रिशिएट करें। आप यकीन माने, ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, जितनी भी चीजें मैंने जिक्र की हैं, अगर कोई भी एचओडी, कोई भी लाइन मैनेजर, सुपरवाइजर अपनी टीम के साथ अगर इस तरह का मामला रखेगा, आई होप जो टीम बिल्डिंग, जो रिलेशनशिप आपस में जो कायम होनी चाहिए एचओडी और टीम के दरमियान, वो लाजमी होगी। और टीम लाजमी फॉलो करेगी, और बिल्कुल भी ये सोचने का बिल्कुल भी उसके दिमाग में ख्याल नहीं आएगा। आप यकीन मानिए, जापान में, मैं आपको बताता हूँ जापान में क्या होता है। जापान में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वहां के लोगों की अगर उठाकर देख लो, तो उन्हों वो दुनिया से चले जाते हैं वो लोग, लेकिन उनकी एम्प्लॉयमेंट अगर हिस्ट्री उठाकर देखो, तो पता ये चला है कि जितने भी लोगों ने जॉब्स करी हैं अपनी लाइफ में, या तो एक जॉब करी है एक एचओडी के अंडर में, या दो जॉब्स करी हैं दो एचओडी के अंडर में। 60 साल, 70 साल उन्होंने गुजार दिए, लेकिन हिस्ट्री ये बता रही है कि उन लोगों ने एक ही कंपनी में अपनी जिंदगी गुजार दी, या दूसरी कंपनी में जिंदगी गुजार दी। अच्छा, दूसरी कंपनी में भी अगर जिंदगी गुजारी है तो स्विच क्यों करी?
क्योंकि पुरानी कंपनी बंद हो रही थी, उसकी रीजन ये थी। वरना अगर वो कंपनी बंद नहीं हो रही थी तो उसकी भी वो अपने उसने भी अपने एक ही एचओडी में अपनी लाइफ गुजार देनी थी। क्यों? वहां एचओडी की तरफ से केयर इतनी मिलती है अपनी टीम को, वो कहता है यार अगर मैंने इस बंदे को छोड़ दिया, ऐसे एचओडी को छोड़ दिया, पता नहीं अगला एचओडी मेरे को ऐसा मिले ना मिले। तो ये एक सबसे बड़ी एग्जांपल है कि एक बाप की तरह, एक जिस तरह एक फादर फिगर, मैंने कहा फादर फिगर क्वालिटी, एक बाप की तरह एक शफकत वाला मामला अगर एचओडी अपनी टीम के साथ रखे, और जिस तरह घर में बच्चों को कोई अगर मिस्टेक हो जाती है निकाल तो नहीं देते ना, टर्मिनेट तो नहीं कर देते ना बच्चों को, निकलो यहाँ से, तुमने ये मिस्टेक कर दी, तुमने ये गलती कर दी। समझाते हैं, बिठाते हैं, प्यार मोहब्बत से लेके चलते हैं। तो आज का मेरा सेशन यही है कि एक फादर फिगर क्वालिटी अपने अंदर पैदा करें और अपनी टीम को शफकत के साथ लेके चलें। वो तस्वुर भी नहीं कर सकेगी कि वो अपनी जॉब स्विच करने का सोचे या वहां से मूव होने का सोचे। जी शम्स। Great, Salman. Thank you very much. I think जो आपने आज डिस्कस किया, it's very simple, common, we all are aware, but I think उस पे ऊपर emphasize करना, उस चीज़ को realization करना, I think it's very important. Uh, just to review, in case if anyone has missed in between जो हमारी conversation सर ने discuss की, you talk about that team building starts from टॉप टू बॉटम आई बिलीव कि जी आप किस तरह से अपने सब ऑर्डिनेट्स को कम्युनिकेट करते हैं, हेल्प करते हैं टू ग्रो। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Then you talk on the very important point is about mutual respect. I think वो एक बड़ा ही important element है, and that's as per your study you already mentioned that uh, the majority, more than 75-80% people leave because of the bad managers or the bad culture or the bad behavior which they have been observing or they have been feeling for quite few times, right? So reason ये होता है कि लोग इस वजह से इसको कर रहे होते हैं। Then we talk on the do's and don'ts, right? So you talk on that जी demotivation वाला जो आपने element किया कि the selection of word is very important, कि जो आप communicate या कर रहे हैं, right? कि वो जैसे आपने example दिया कि जी आपने MBA करना था, आपने example दिया और आपको अगर grow करना है, but it has a ways to tell, right? So आपने इसकी बात की जी it should be more on motivating instead of demotivating कि जी आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपको बहुत कुछ आता है और अगर आप ये ऐड करेंगे तो आपके लिए एक प्रोग्रेस होगा टुवर्ड्स योर सक्सेस। तो आई थिंक वो मोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन यू टॉक अबाउट द डिसरिस्पेक्ट कि जी हम अब बहुत सारी मरतबा नोइंगली अनोइंगली जो है वो मैनेजर्स जो है वो सब ऑर्डिनेट्स और कुलीग्स के दरमियान या हम इन जनरल जो है वो आके जो है वो हमारा लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ योर वोकल, इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल लैंग्वेज, आपको जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं जो है वो नेगेटिव नोटेशन में चले जाती है, जिस वजह से वो एक बैक एंड इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। Then third important point which you mentioned, I think it's very important, and there might be the people those who are facing those who lack in terms of communicating their message. I think इसलिए वो communication वाला part भी बड़ा ज़रूरी है इसमें, which is about taking credits of others, right? So usually देखने में है कि जो टीम जो है वो कर रही होती है और जो बंदा काम कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं penalize हो रहा होता है because he was not able to communicate the timely or the rightly manner. Or again, it's been a good practice that the team leader should encourage his team members and should highlight कि जी उन्होंने जो सक्सेस किया है वो उसको हाईलाइट अच्छा सा हो। Five pointers which you mentioned. Before going to that, we have people those who have joined just going through the comments. Hamza, thumbs up. Thank you, Hamza, for joining. Ibrahim Rezwan said, "Mashallah." Thank you again. All credit goes to you, sir. Zar Basha said, a very senior HR professional said, "Good show, Shams and Noor Saab." Thank you, Zar Saab, for joining. We have Wahid Akhtar said, good insight. Thank you, Wahid. And simultaneously, if you have any questions, do drop so we can just ask once you move into the question and answers part. Then you talk about do's, right? कि जी क्या चीजें होनी चाहिए. We talk about the acknowledgement. Acknowledgement, I believe, just to add more towards this discussion, is about giving response and be responsible in terms कि जी आपने बता तो दिया जी आपने काम कर लिया है और फिर जब इस आपके सबऑर्डिनेट ने काम कर लिया, so there is no response, there is a silent, right? In terms of चाहे वो मैसेज हो, in terms of email हो या in terms of tap on the back हो, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं जो वो साइलेंट वाला जो पार्ट रह जाता है वो अनएक्नॉलेज रह जाता है या अनआंसर्ड रह जाता है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं नोइंगली अनडूइंगली जो है वो टीम लीडर्स करते हैं। आई थिंक दिस नीड्स टू बी डन. Second, you talk about is appreciation. Yes, it could be different modes. We have been looking at the different social media posts.
which is a very good practice that you are encouraging your team members at different levels, right? Whether it's email, it could be a precision letter, it could be certificate, it could be recreational activity. I think आपने बड़ी important बात इसमें बताई. Third important thing is about trust, right? So again, the trust is the basics for everything. So if the task which has been given to a subordinate या team, या जब आपने team का part बनाया है तो आपने उस trust level के साथ उसको बनाया. So I think this needs to be improved if and where required. I think कि वो कहीं ना कहीं अगर miss है तो वो बड़ा element बड़ा ज़रूरी है. Fourth element you talk is about care, and just to add, it's more of putting your shoes in other person's I would say carrying an extra effort, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसमें हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आ रही है, हाउ टू डील विद पीपल की बात है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको जेन्युइनली जो है वो उस चीज़ की जो है वो रिस्पेक्ट दे. And the fifth important thing you talk about unconditional love, right, which a parent and child has. So again वो जब unconditional love होगा तो automatically आपका वो result इस तरह से करेगा. I have a few questions and there is one question from Kashif as well. Ji, I'll take first Kashif's question. Thank you, Kashif, firstly for asking the question. And the question is about, I'll just full screen, right. Kashif said, thank you very much, Salman Saab. You have provided very important points. I think HOD, the management members normally aware all these points, but problem arises when they feel insecurity from their subordinates. They feel that our subordinate is more competent than me and slash us. So please discuss on this point. Very important and I think very interesting question. So over to you. असल में बात अगर इनसिक्योरिटी की आ जाती है तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इन सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि बंदा इनसिक्योर फील कब करता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ. सबसे पहले तो ये इनसिक्योर फील कब करता है, क्योंकि गैप रहता है दोनों के दरमियान, कम्युनिकेशन गैप रहता है, किसी न किसी मामले के अंदर लाइक और डिसलाइक का बंदा शिकार रहता है. तो ये तो सब जगह है, तो इनसिक्योरिटी तो आपको सब जगह मिलेगी. और मेरी कम्युनिकेशन, मैंने जो आज का टॉपिक चुना है उसका सारा जो मैंने डिस्कस किया है वो इनसिक्योरिटी पर तो मैंने डिस्कस किया सारा. अब इसका हल ये है कि कम्युनिकेशन, कि अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हो अपने सबऑर्डिनेट के साथ तो यू हैव टू सिट विद हिम, टॉक टू हिम. एंड अगर आप भी अपने दिल में अगर किसी के लिए कोई बात रख के बैठ गए, अगला सामने वाला भी रख, तो वो गैप कायम रहेगा, वो चीज खत्म नहीं होगी. वो भी अपने दिमाग में यही तस्वुर रख के बैठेगा शायद इसकी वजह से मैं इनसिक्योर, और सामने वाला ये समझेगा शायद इसकी वजह से मैं इनसिक्योर. ये चीज खत्म हो सकती है सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से. आप एक इसका हल ये है कि आप, हमारी मैडम क्या करती थी, हमारे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कभी भी कोई इस तरह का इन्वायरमेंट अगर क्रिएट हो जाता था कॉन्फ्लिक्ट का या किसी मामले का, तो हम लोग क्या करते थे, हमारा डिपार्टमेंट, हम एक ना एक पिज्जा पार्टी का प्रोग्राम कर लिया करते थे बाहर जाके कि चलो हम एक साथ पिए. अगर माहौल जरा बिगड़ गया या खराब हो गया तो एक रेस्टोरेंट में चले गए, सारे एक जगह वहां बैठ गए, तो एक खूबसूरत सा कोई बर्गर मंगा लिया, कोई पिज्जा पार्टी कर ली. तो उसके दरमियान एक अच्छे एनवायरनमेंट में अगर इस तरह की गुफ्तगू स्टार्ट की जाए तो गुफ्तगू से जो है बहुत सारी बातें जो है वो आपस में रंजिशें खत्म हो सकती हैं. आपस में एक दूसरे के साथ जो भी इख्तलाफ है या किसी मामले में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो सकती है. एक अच्छा और खुशगवार माहौल पैदा करके जो है इस चीज को खत्म किया जा सकता है. Thank you. I think very importantly said and rightly said. We have another question from Ibrahim Rizwan. Thank you, Ibrahim, for asking the question. The question is about what if the employee is satisfied with the company, culture, management team, but the salary is not as per market compatible. The employee should switch or stick with the company. So, thank you, Ibrahim, for asking a very important question. नहीं, देखें, बात यह है कि सवाल आपका अच्छा है इब्राहिम, ठीक है, आपने सवाल अच्छा करा. आपके नजदीक अगर सैलरी एज पर मार्केट कॉम्पिटिटिव नहीं है तो सवाल यह है कि क्या आपकी प्रोफाइल वो एज अ मार्केट कॉम्पिटिटिव है या नहीं. ये भी तो एक चीज है ना.
आप अगर इस बात पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हो कि अगर आपकी सैलरी एज अ मार्केट कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो क्या आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी प्रोफाइल, उनका एक्सपीरियंस, ये भी तो एक चीज है। तो अगर आपकी आपकी प्रोफाइल उनके लेवल के मुताबिक है, और अगर आप ये सोचते हो कि मेरी सैलरी भी एज पर मार्केट कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, तो अगर आपकी प्रोफाइल उस हिसाब से है, उन लोगों के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो फिर तो आप सही सोच रहे हो, फिर तो बंदे को मूव करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल और आपका एक्सपीरियंस उन लोगों के मुताबिक नहीं है जो मार्केट में बहुत हाई लेवल की प्रोफाइल रख के लोग बैठे हुए हैं, हाई एक्सपीरियंस रखे हैं, इसी बेस पे उनको हाई सैलरी मिल रही है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल हाई नहीं है और अगर आपका एक्सपीरियंस हाई नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हो कि मुझे सैलरी हाई मिले, सो दिस इज नॉट फेयर। सबसे पहले जरूरत क्या है, माशरे में देखें बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो यही बात का रोना रो लेंगे बैठ के कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही, हमारे को हमारे मुताबिक जो है वो पैकेज नहीं मिल रहा। हालांकि ज्यादातर लोग अपने एजुकेशन को डेवलप करने में मेहनत नहीं करते। वो एक जगह पढ़े हुए हैं तो एक ही जगह पढ़े हुए हैं, उन्होंने ना वो एमबी की तरफ गए, ना वो किसी सी एच आर एम जो सर्टिफिकेशन की तरफ गए, और वो बैठ के वो शिकवे शिकायती कर रहे होते हैं। भाई ठीक है, ठीक है आपकी सैलरी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए क्या एजुकेशन अपडेट करी आपकी, आप ये भी तो सोचो ना। तो ये अगर आपने अपनी एजुकेशन अपडेट की है, और अगर उस हिसाब से अगर आपको नहीं मिल रही, फिर तो आपका मूव होना बनता है। लेकिन अगर आपने अपनी एजुकेशन अपडेट नहीं करी, और अगर आप ये रोना रो रहे हो कि यार मेरे को सैलरी नहीं मिल रही, तो फिर तो आपको रोना बेकार है। Very rightly said, and I am sure Ibrahim, your answer is well answered. जो आपका क्वेश्चन था, आई थिंक वो satisfactorily आंसर हुआ है. I have one or two questions. I'll just take those questions, keeping you the time frame as well. Meantime, if anyone from the audience have a question, I'll try to take the question first from your side. My first question to you is about how do you approach the conflict part? चूंकि जब एक conflict हो जाता है team building के अंदर, right? So you are sitting in your office, and then you are aware, came to know कि जी आपने एक task assign किया था. So there is a conflict in terms of competition, in terms of जो है वो किसी और का reward लेना. So how to identify and how to have a better solution, if you would like to share any example during your past experience. Yes. हाँ, असल में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टीम मेंबर के अंदर तो ये मामला रहता है कि टीम के दरमियान आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है किसी न किसी मसले के अंदर, और मकसद ये होता है कि हर कोई इसी कोशिश में लगा हुआ होता है कि काम का क्रेडिट उसको मिले, काम का क्रेडिट उसको मिले, और मैनेजर की नजर में उसकी अच्छाई ज्यादा हो। यही सिचुएशन होती है जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, और यही सिचुएशन होती है जो मैनेजर के सामने होती है। मैनेजर तो अपनी आंखों से, एचओडी तो अपनी आंखों से हर चीज देख रहा होता है खामोशी से। अब इसमें एचओडी का पार्ट है बेस्ट, जो एचओडी का जो पार्ट है ना, वो मेन रोल है कि एचओडी अपनी टीम को बिठा के, बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी कम्युनिकेशन, कि एचओडी अपनी टीम को सामने बिठाए, और सामने बिठाने के बाद इंडिविजुअली उनके बात को सुने, उनके कंसर्न को सुने, इस तरीके से सुने कि वो लोग सेटिस्फाई हो जाएं। ये नहीं कि बिठा के नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था, नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं था, कि उसकी सुननी नहीं है और अपनी बोले चली जानी है। तो वो तो फिर बोलेगा यार जब सर तो मेरी सुननी दे रहे बात, तो इससे बेहतर यार मैं खामोशी कर जाऊं या उठ के चला जाता हूँ। लीडर वो होता है जो अपनी टीम को बिठाता है सामने, अगर उसके सामने कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है टीम का, वो सामने टीम को बिठाता है, या तो इंडिविजुअली बिठाता है, एक एक करके इशू को सुनता है, बेटा क्या हुआ, क्या मसला हुआ, बताओ क्या इशू था। उसके बाद इंडिविजुअली करने के बाद फिर वो इज्तिमाई तौर पे सबको एक साथ बिठा के फिर उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में था, तो मेरी मेरे सुपरवाइजर के साथ थोड़ी सी तुतु में हो गई थी, और उनकी मेरे साथ जरा तुतु में हो गई थी, और बात फिर जब एचओडी तक गई, तो एचओडी ने पहले सुपरवाइजर को बुलाया। सुपरवाइजर को बुलाने के बाद उनकी पहले जबानी सुनी कि मसला क्या था, फिर उसके बाद मुझे उन्होंने बुलाया और मेरी जबानी सुनी कि मसला क्या था। उसके बाद फिर उन्होंने एनालिसिस निकाला कि कॉन्फ्लिक्ट क्या था, और दोनों का मौकिफ क्या है, और कौन अपने मौकिफ में दुरुस्त है, कौन अपने मौकिफ में गलत है।
तो फिर उन्होंने वन बाय वन बुला के फिर समझाया कि देखो इस तरीके से सलमान के साथ तुमने गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहता, या मुझे बुलाया, देखो वो आपका सुपरवाइजर है, हायरार्की में जो है आपके साथ बड़ा है, तो आपको भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इस तरह आपको नहीं कहना चाहिए। तो बात है कम्युनिकेशन की। तो एचओडी के ऊपर होता है कि इंडिविजुअली मसले को सुने और उसको रिजोल्व करने की कोशिश करें बाय कम्युनिकेशन। जी। Great, great. Thank you very much. I also have one more question is about gauging the senior professional with the young ones. जो कि हमने ये देखा होगा कि जी the organization has started a very good practice in terms के जी हमने management trainee program या internship program start किए, right? अब usually ये होता है कि जी there is a person sitting at the department who is the team lead or the supervisor, right? और उसके नीचे कुछ trainees आते हैं. So we have been encountered in such a way कि जी uh, again they are from the millennial Gen Z, तो उनका जो है वो in terms of working environment, working style जो है वो एक दूसरे से collapse कर रहा होता है because they are more IT savvy, they are thinking on the softwares on other ground which is more quicker part, right? In the other end, there are some senior professionals, those who are having an enriched experience, right? So both are looking forward for the progress of the company. बट वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है कि वो कहते हैं कि जी आपका तो अभी एक्सपीरियंस है, आपने अभी स्टार्ट की, तो आप अभी यू शुड वेट एंड साइमल्टेनियसली दे फील डिप्राइव्ड इन टर्म्स कि जी आपने इतना अच्छा आइडिया दिया, उसकी आइडिया को इंकरेज नहीं किया जा रहा है. सो इन सिचुएशंस को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? असल में बात घूम फिर के आई थी वही एचओडी के ऊपर कि असल मैं इस सिलसिले में जो है ना, मैं सबसे पहले तो अब मैं अपनी अगर जाती तौर पे अगर बात बताऊं, मेरी मेरी लाइफ का जो कैरियर की जो फर्स्ट जॉब थी वो हॉस्पिटल थी सऊदी अरब के अंदर। जब मैं पाकिस्तान आया तो सेकंड जॉब भी हॉस्पिटल, और अभी मैं तीसरी जॉब कर रहा हूँ अपनी कैरियर की, वो भी हॉस्पिटल। तो पहली बात तो ये है कि मैं इस एक चीज जो मेरी जाती तबीयत है, मैं लोगों को भी ये कहता हूँ, कोशिश करें कि अपनी इंडस्ट्री से हट के किसी दूसरी इंडस्ट्री की तरफ जाने की कोशिश ना करें। मेरी एक मेरा एक परसेप्शन है, गलत भी हो सकता है। एक तो ये चीज, क्योंकि देखें फिर ये इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं जो आपने बात बोली है, ये चीज, वरना फिर ये इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से मैं इसी बात पे कायल हूं, और अपने जितने भी लिंक में लोग हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। चिन्यो जनरल हॉस्पिटल में मेरे एचओडी काम करते थे, फारूक नाम है उनका। वो एक जगह इंटरव्यू देने के लिए गए। इंटरव्यू था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। बंदे ने, वहां के एमडी ने उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद कहा कि यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट व्हाट आई एम ऑफरिंग टू यू, बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट हायर यू बिकॉज यू डोंट हैव एक्सपीरियंस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वो बंदा जब शाम को मैं उसके गया, उसने मुझे बता दिया था मेरा इंटरव्यू है, तो मैंने शाम को फिर मैंने कहा सर क्या हुआ, आपका इंटरव्यू था? कह रहा है यार वो इंटरव्यू में उसने उस बंदे ने मुझे क्वालिफाई तो कर दिया, लेकिन मैं हायर नहीं कर सकता क्योंकि आपकी इंडस्ट्री जो है डिफरेंट है। तो ये इश्यूज आते हैं, ये चीज इंडस्ट्री मैटर करती है। मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर, बाहर ममालिक में तो इतना नहीं होता, इन चीजों को मैटर नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान में खुद मैंने देखा है लिंक्डइन के ऊपर अगर कोई जॉब पोस्ट भी की जा रही होती है तो उसमें इंडस्ट्री वो जो है मेंशन कर दी जाती है। अगर आईटी की जॉब है तो वो ये करते हैं प्रीफर आईटी इंडस्ट्री। अगर एचआर मैनेजर हॉस्पिटल में चाहिए तो वो कहते हैं प्रीफर हॉस्पिटल बैकग्राउंड एक्सपीरियंस। तो ये चीज है, तो अगर अव्वल अगर इस चीज का बंदा ख्याल रखे तो ये इश्यूज आएंगे नहीं। दूसरी बात, अगर एचओडीज अगर इस तरह की टीम्स से बात करेंगे तो जाहिर बात है, अव्वल तो एचओडीज को सोचना चाहिए कि वो इस तरह की बात ही ना करें किसी भी टीम के साथ। बाइसनेस की, ये तो सीधा सीधा मुंह पे बाइसनेस वाली बात हो गई। तो उसमें तो एचओडी को ख्याल रखना चाहिए वो ऐसी बात ना करें, क्योंकि हर टीम का बैकग्राउंड पता होता है एचओडी को कि कौन किस इंडस्ट्री से आया है, कौन कहाँ से आया है। तो एचओडी जरा ख्याल करें, क्योंकि बात घूम फिर के एचओडी के ऊपर आ जाती है। मेरी Excellent. अपनी ऑब्जर्वेशन ये है। Excellent, excellent. I'll just ask one more question and then we'll conclude the session. Uh, we talk on the team building exercise, team building skills, और हमने बहुत सारी इसके if and buts पे आज बात की. So my question to you is about the evaluation criteria, which is the of a best practice. या आप कोई share करना चाहे, where individual progress is also encouraged, simultaneously team building is also encouraged. For example, आपने किसी project को दिया, right? So there are 5 members in the team. Let's take a hypothetical scenario कि जी आपके पास जो है 5 लोग उस टीम के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. There might be 3 individuals, those who are performing their extra effort, right? कि जी उन्होंने जो है वो
टास्क को एनालाइज भी किया, उसके ऊपर मार्केट रिसर्च भी की और बेस्ट प्रेजेंटेशन बनाने की भी कोशिश की. Simultaneously, there are two peoples. One could be very dumb, one could be very smart, right? So we're just taking a scenario base. KG, because here the team ka sub part, or luckily jo hai wo, there is a competition between two teams which has to present something. So वो team win कर जाती. But yes, there would be a certain gray area or grievances in sense कि जी हम 3 लोगों ने काम किया था, reward पांचों को मिला है. या there could be a certain things के जी individual has more contribution towards the team besides others. So what is your say in this कि जी individual performance versus team performance? Again, although I always incline towards the team performance because that is it creates the synergy, it creates more impact. But yes, how this has not been undermined in both the ways कि जहाँ पर team performance भी जो है वो encourage हो रही है, simultaneously individual performance को भी take care किया जा रहा है. So any best practice you would like to share? Yeah. अबूबल प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा बहुत ही कम ही होता है एचआर डिपार्टमेंट में कि एचआर हेड ने कोई, वैसे तो हर किसी की अपनी अपनी जीडी असाइन होती है और हर बंदा अपने अपने काम में इंडिविजुअली उसको परफॉर्म कर रहा होता है एचआर डिपार्टमेंट में. लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ये इस तरह के सूरत हाल तो मतलब कोई बीबीए कर रहा है तो वहाँ 5 स्टूडेंट एक साथ बैठ के किसी प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम कर लिया, या एमबीए कर रहे हैं तो वहाँ ये इस ग्रुप वहाँ होते हैं तो किसी एक प्रोजेक्ट पे रिसर्च पे उनको काम करना होता है. तो इस तरह का मुझे तो कभी आइडिया नहीं हुआ, ना मेरे को इतना तजर्बा है इस बारे में, तो मैं आई डोंट थिंक मैं इस बारे में कुछ अपनी सजेशन दे सकता हूँ. तो आई एम सॉरी, Right. आई कैन No नॉट से issues at एनीथिंग all. अबाउट इट. Right. I will. आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट. No. लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आपकी बात से मैं अपने एक चीज ये शेयर करना चाहूंगा. एक होता है इंडिविजुअल परफॉर्मर और एक होता है टीम वर्कर. तो दोनों के अंदर जो लीडर वही बनेगा जिसका बिलीव टीम वर्क पे होगा. लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे कि मेरे को दे दो छोड़ दो, बस मैं कर लूंगा, मसला नहीं है, आप मेरे को दे दो छोड़ दो, बस छोड़ दो, मैं आपको बता दूंगा एक आध घंटे के अंदर. इंडिविजुअल परफॉर्मर एक अच्छा टीम प्लेयर हो सकता है लेकिन वो ये सोच ले वो लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि लीडरशिप की डिमांड ये है कि लीडर ने टीम से काम लेना है. ये मैं एक पॉइंट दे सकता हूँ इस बारे में, एक इंडिविजुअल परफॉर्मर और एक टीम वर्कर बारे Very में. rightly said, and I think you pointed very rightly. Simultaneously, just to create the scenario in sense कि हम इसमें best thing there are number of जैसे आपने बताया कि roles and responsibility is also I think very important कि जी delegation बिल्कुल of work team leader कर रहा है, right? So he also should have in-depth understanding कि जी X person can deliver in such a manner कि जी for example सलमान साहब जो है वो financial side he is extraordinary, right? Shams is good in marketing side. X person is good in some other side. So I think वो delegation of work जब होगा तो I think उसका outcome better हो सकता है. और बिल्कुल simultaneously बिल्कुल there is no clash of duplication of work. I think वो भी एक better performance team की भी नजर आएगी और individual की नजर आएगी. Just for an input side, there is one question from Kashif. I'll just take Kashif's question and then we'll conclude the session. Kashif has a question, although it's not directly, but it's a general question, and I believe thank you, Kashif, for asking. Uh, can you discuss about the interview things like how to dress up for an interview, answering the questions, basic questions, which is described about yourself, why should we hire you, set expectation, why you are leaving the current job. So these are the few basic questions which have been asked. So how to answer in a proactive manner? Yeah, if you would like to answer. हाँ जरूर 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 जरूर. ये काशिफ का जरा डिस्प्ले कीजिएगा सवाल, जी जी आप क्योंकि इन्होंने एक ही सवाल में 4-5 सवाल एक साथ कर जी दिए. जी जी ऐसा ही है. ये चीज. अच्छा, काइंडली इफ यू कैन डिस्कस अबाउट इंटरव्यू थिंग्स लाइक हाउ टू ड्रेस अप फॉर इंटरव्यू. इंटरव्यू के हवाले से मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि 20 साल हो गए इंटरव्यू करवाते करवाते, सऊदीया में 16 साल इंटरव्यू करवाए, पाकिस्तान में 4 साल इंटरव्यू करवाए. बुनियादी चीज जो है ना इंटरव्यू में, कैंडिडेट जो मिस्टेक करता है वो लेट पहुंचना.
आपने फर्स्ट इंप्रेशन ही अपना गलत दे दिया इंटरव्यू में लेट पहुंचकर। मैं सजेस्ट ये करता हूं एचआर पॉइंट ऑफ व्यू और एज अ प्रोफेशनल, अगर आपको 12 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया है दोपहर को, आप 11:30 बजे वहां पहुंचो। पहली बात क्यों कि, और मैं एक और बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी, लेकिन मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा कि आधे घंटे पहले आप पहुंचो। अगर आपका इंटरव्यू 12 बजे स्टार्ट होना है, आप आधे घंटे पहले पहुंचो। आधे घंटे पहले क्यों पहुंचो? क्योंकि जब आप, हमारे पाकिस्तान का ट्रैफिक इतना खराब है कि जब आप घर से बाहर निकलते हो और जिस जगह आपका इंटरव्यू है, जब आप वहां पहुंचते हो, तो आपके बाल भी खराब हो चुके होते हैं, आपका चेहरा भी खराब हो चुका होता है, आपके कपड़े भी खराब हो चुके होते हैं। आप वहां जाते ही सबसे पहले तो वॉशरूम जाए, कंघा छोटा सा साथ ले जाएं, कंघा करें, दाढ़ी वाड़ी, टाई सही करें, व्हाइट शर्ट, अपना हुलिया दुरुस्त करें सबसे पहले, बुनियादी चीज। और उसके बाद जब आप रिसेप्शन पे जाएं और उनको बताएं एचआर को कि इंटरव्यू था, इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया है, सबसे पहले जल्दी पहुंचने का मकसद ये है कि सबसे पहले हुलिया सही करें। और आप वहां जाएंगे तो जाते ही सबसे पहले आपको जॉब एप्लीकेशन दी जाएगी, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपका इंटरव्यू हो जाएगा। आधे घंटे का मार्जिन किसी लिए रखा है मैंने? 5 मिनट, 5-10 मिनट आप अपने आप को हुलिया दुरुस्त करने के लिए, और 5 से 10 मिनट आपको जॉब एप्लीकेशन फिल करने के लिए रखें। दूसरा, पेन साथ लेके जाएं। जब जॉब एप्लीकेशन दी जाती है ना फिल करने के लिए, वहां हर बंदा पेन ढूंढ रहा होता है जेब में, इधर देख रहा होता है, इधर का यार कहीं से पेन मिल जाए। जब भी इंटरव्यू की देने जाएं, पेन अपना साथ लेके जाएं ताकि मांगना ना पड़े जिस वक्त जॉब एप्लीकेशन फिल करने के लिए दी जाएगी। पेन लाजमी साथ लेके जाएं। दूसरा, जब आप एप्लीकेशन फिल करके उसको दे देंगे, आपका इंटरव्यू हो जाएगा स्टार्ट। तो अच्छा, ये काशिफ साहब का सवाल जरा काइंडली जरा। हाँ, दूसरा ड्रेसअप। मैं तो जब अब बात ही आती है ड्रेसअप की, तो ड्रेसअप तो यही है कि जब आप एक प्रोफेशनल इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो मेरी सजेशन ये है कि मैं तो हमेशा व्हाइट कलर की टाई पहनता हूँ। टाई मेरी का कलर ऐसा होता है जो मेरी पैंट के कलर के साथ मैच कर जाए। एक प्रोफेशनल ड्रेसअप, और नोट आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल ड्रेसअप होना चाहिए आपका। डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ, पहला सवाल आपने कहा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो कोशिश करें कि इंटरव्यू में जो भी आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका शॉर्ट आंसर दें, क्योंकि सामने वाले के पास, इंटरव्यूअर के पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी पूरी रामलीला सुने बैठ गए। आपने मुख्तसर सा जवाब देना है। अच्छा, डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ। बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं, जो कुछ सीवी में लिखा हुआ है वो ही बताना शुरू कर देते हैं। हालांकि हकीकत पता है क्या है इस सवाल की? हकीकत ये है कि डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ विच इज नॉट मेंशन इन दिस सीवी। क्योंकि जो कुछ सीवी में लिखा हुआ है वो तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन आप इससे हटके कुछ बताएं। असल हकीकत में इसका मायने ये है। अब आपने अगर सीवी में जो लिखा हुआ है वही सब कुछ बताना शुरू कर दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपनी। मेरे से जब ये सवाल किया जाता है, मैं अपना बताता हूँ। मैं सऊदीया से आया हूँ। पहला सवाल, मेरा नाम सलमान है, मैं सऊदी अरब से आया हूँ, वहाँ मैंने 16 ईयर्स काम किया है। यहाँ पाकिस्तान में आया हूँ, मेरे 4 साल हो गए, और अब मैं पिछले 4 सालों से अपनी फैमिली के साथ यहाँ सेटल हूँ। और मैं स्टिल, मेरी फैमिली वहाँ पर है, अम्मी अब्बू वहाँ पर है, बिन भाई सर वहाँ पर है, मैंने अपनी पूरी लाइफ वहाँ गुजारी। बस, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, दैट इज। वो कुछ आपने बताना बहुत कम, जो ऑलरेडी बहुत सारी चीज जो सीवी में मेंशन है उसको ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो सीवी के अंदर मेंशन है। व्हाई शुड वी हायर यू? इसका जवाब ये है कि जो जॉब आप ऑफर कर रहे हैं, मेरी जेडी उसकी जेडी के साथ मैच करती है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप मुझे हायर कर लेंगे, तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर आउटकम दे सकता हूं, क्योंकि मेरी जेडी भी वही है जो जेडी आपने एक्सप्लेन की है, और मेरा एक्सपीरियंस भी वही है। तो मैं बेहतर आपको आउटकम दे सकता हूं। मैं ये फील करता हूं कि अगर आप मुझे चांस देंगे तो मैं वही बेहतर रिजल्ट आपको दे सकता हूं। दूसरा, क्योंकि मेरी वही जो जेडी आप ऑफर कर रहे हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में यही मेरी जेडी थी। इसका ये जवाब होना चाहिए। ये, और सैलरी एक्सपेक्टेशन। अच्छा, सैलरी एक्सपेक्टेशन जो है ना, उसमें सैलरी एक्सपेक्टेशन के मामले में मेरा, हमारी जो एचआर की जो एक कम्युनिटी का एक इज्मा है इसके ऊपर, वो ये है कि जो भी आपकी सैलरी है, आप 20% ज्यादा बताओ, इससे ज्यादा नहीं बताओ। मिसाल के तौर पर अगर आपकी करंट सैलरी 1 लाख रुपए, तो आप एक्सपेक्टेशन 1,20,000 बता दो। 1.5 लाख नहीं बताओ, क्योंकि अगर आप 1.5 लाख बताओगे वो बोलेगा भाई अपना काम कर, 1 लाख तो तू वहां ले रहा है, 50,000 हमारे से ऊपर किस बात के ले रहा है। तो 1,20,000 बता दो आप।
या 25,000 बता दो, या 30, तो उसमें 5-10,000 जब बार्गेनिंग होगी तो नेगोशिएशन होगी, तो 5-10,000 उसके अंदर तोड़-जोड़ जो करते हैं सब जगह रिक्रूटमेंट के अंदर, तो 20% का मार्जिन रखो। व्हाई यू आर लीविंग योर करंट जॉब? अच्छा अच्छा, ये बड़ा केयरफुल सवाल है, बड़ा केयरफुल जवाब है, इसमें बड़ा केयरफुल होकर जवाब देना पड़ता है, डिप्लोमेटिक। अच्छा, मेरे से जब भी इस तरह का सवाल होता है, मैं तो एक ही जवाब देता हूँ, इन्फ्लेशन। सो सिंपल, इन्फ्लेशन। आपने व्हाई यू आर लिविंग योर करंट जॉब, इसमें कोई रीजन नहीं देनी कि यार वो मेरे एचओडी के साथ जो झगड़ा हो गया था, या वो मेरे सुपरवाइजर के साथ उसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला, मैंने तो उसको ऐसी सुनाई, खरी खरी सुनाई, बस वो याद रहेगा मेरे को, लेकिन अब मेरा वहां दिल ही नहीं चाह रहा है, बस मैं इसीलिए मूव करना चाह रहा हूँ। एक रिएक्टिव अपनी पर्सनैलिटी का एक्सपेक्ट उनको बिल्कुल दिखाना ही नहीं है कि यार मैं बड़ा रिएक्टिव बन रहा हूँ, मैं फौरन एक्शन में ले लेता हूँ। बैड इंप्रेशन जाएगा सामने वाले को। तो हो सकता है ये सारी बातें हकीकत भी हों, लेकिन इंटरव्यू में कहने वाली नहीं होती। हर किसी के साथ होती है लाइफ में, जाहिर बात है, किसी ने कुछ कह दिया होगा तो आपने भी रिएक्शन दिखा दिया होगा, लेकिन ये बात है आपने इंटरव्यू में नहीं कहनी, डिप्लोमेटिक जवाब देना है। ये चीज बात ये कि पानी की बोतल, आप इंटरव्यू है क्या, आपने अपनी पर्सनैलिटी बेचनी है, तो आपने अपनी पर्सनैलिटी की पॉजिटिव खसूसियात बतानी है। अगर नेगेटिव बताएंगे तो सामने वाला बोलेगा सर खुदाफिज। जी। आवाज नहीं आ रही। जी, अब आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है। Great, great. Thank you very much for the answer, the detailed answer, and thank you very much for. I think the question was asked by Kashif. Thank you, Kashif, for asking. We have a comment from Rakshanda, a very senior HR professional. She said team building is paramount for the professional as it fosters the collaboration, enhances the communication, and cultivates a cohesive working environment, ultimately boosting the productivity and overall job satisfaction. In the well-bound team, individuals strengthens, synergize to achieve the collective success. Undoubtedly, I think वो session को आपने इसको summarize किया. She's been very kind and always been very participative. Thank you, रक्षंदा, thank you. रक्षंदा से बड़ी अच्छी मुलाकात है, और काफी सारे प्रोग्राम में हम एक साथ मिलते भी रहते हैं। और रक्षंदा इज वेरी गुड एंड वेरी प्रोफेशनल वुमेन, एंड मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। Excellent. And she also encouraged. With this note, I think we can conclude today's session. Just wanted to या thank the individuals, those who participated. I'll just name few of them. Hamza, thank you for joining. We have Ibrahim Rizwan. Ibrahim, thank you. Zed Basha, thank you very much. Wahid Akhtar, thank you. Wahid Kashif for asking the wonderful questions. Ibrahim, again, you also important, very good questions and a thought-provoking thought. Then we have Kashav, Rakshanda. Thank you all. Special thanks to Salman for taking out time, sharing your thoughts, your experience, and adding value to the discussion. I think it थैंक यू। was wonderful having you today on behalf of ICM International. I say thank you for joining us today. Uh, It's my pleasure that you invited me today for this great session, and I really appreciate, and very thankful to you, to your team, and ICM also. And thank you very much. Great. And once again, for in case a note, if anyone has missed the particular session, the recording will be available on the Facebook Live. So you may revisit in case if anyone has missed out. You may share the videos with those who you feel that it's very important. So again, do share with them and stay tuned. Inshallah, we'll see you inshallah next week. We also have a few comments from Kashif. I'll just display the comments. He said, excellent answer, sir. God bless you. Jazakallah. Thank you very much. Thank you very much, We Kashif. have Kamran. Thank you, Shamus Bimani. And thank you very much. Welcome, Khurram. Welcome, Khurram. Welcome. With this note, I conclude session. See you inshallah next week. Take care. Thank, Allah Hafiz. thank you, Allah. Thank you.